As you know, the seminar series is a part of DAS event calendar and is carried out on every Thursday at 2 p.m. Today, the topic of our seminar is evidence-based disease diagnosis in fields and animals, and it is being presented by Dr. Asghar Khan, lecturer, Department of Clinical Studies, Faculty of Veterinary and Animal Sciences. I hope this scientific talk will provide an opportunity to get in-depth knowledge on the topic. After the presentation, there will be a question-answer session. And now it is over to Dr. Asghar Khan. Please carry on. Dr. Asghar Khan, please start with you. Dr. Asghar, can you please hear me? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे सुन रहे हैं सर? सर present by lecturer please. ओके सॉरी, कुछ कनेक्शन इशू है जिसकी वजह से जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, आर यू हियर मी?
Okay, I will present myself itself. I am Dr. Azhar Khan, lecturer in the Department of Clinical Studies, Faculty of Veterinary and Animal Sciences. Today, my topic is evidence-based diagnosis in pediatrics and animals. Why I select this topic? Because you know that in animals or in human, especially in pets, they cannot talk about you self that what I'm problem. So for these, this is very important topic about that how you give your history about your child, about your pets. So for these evidence-based diagnosis, evidence-based medicine is about systemically review, appraising, and using clinical research finding to aid the delivery of optimum clinical care to patients. Patient knowledge of EBM is important because it enables them to make more informed decisions about disease management and treatment. It also gives a patient a more accurate perception of risk, encouraging appropriate use of elective procedure and supportive evidence-based doctor physician. अगर हम थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये है कि अगर इन केस अब डॉक्टर को अपने बच्चे के मुताबिक अपने जो है पेट्स के मुताबिक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री दे देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो जो है डायग्नोज कर ले। अगर वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर लेगा तो प्रॉपर तरीके से जो है उसका ट्रीटमेंट कर लेगा, जिसमें डिफरेंट जो है प्रोसीजर जो है होते हैं या उसको जो है प्रिवेंशन जो है वो उसी के बेस पे जो है करवा देते हैं। Normally in clinical expertise, the clinicians know about their clinical signs, symptoms, their history taking, and also they review best literature for their diagnosis. And in some time, they advise to advise some clinical tests about clinical pathologies. They will also give their diagnosis. Here first tips about that, access your patient. In this tip, they take history and also ask some question about their clinical signs, symptoms, and this when one of them is most important clinical signs, symptom, on these level they diagnose and also treat them. These are the some of the best evidence that will take from their patient. Which include. Are you hear me? Are you hear me? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. Okay. Which include subjective evidence of the disease, objective evidence of the disease, and assessment and planning. In subjective evidence, it's include history taking from owner of the pets and from mother of the child. We will discuss later that in objective evidence, the doctor examine the patient, either it is a child or it is animal. In assessment, there is other, including other things that we'll discuss later and in planning. In subjective evidence, mostly we will ask about the appetite, about the thirst, about the urination, defecation, cough, vomiting, sweating, diarrhea, and history of patient illness, history of present illness, history of drugs, stop and talk, social history, about their diet history, what type of diet you give. One of the example is that if we give our child milk, especially to cat or child, if they are lactose intolerance, they have problem of indigestion, reviewing of their system, drug and food allergy, most of the people, they have allergy about the proteins, especially casein, milk. Chief complaint, you were asked about what is the complaint of your
मोस्टली अगर आप दो देख लेते हैं कि वो डिस्कस आपको कर लेते हैं कि मेरी चाइल्ड को ये मसला है, तो आप लोगों ने ये कोशिश करना होता है कि आप ऐसी जो है आप उनसे जो है सिस्टमेटिकली उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर उनको जो प्रॉब्लम होता है उसके रिलेटेड आपने उनसे क्वेश्चन करना है। अगर उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टिव के साथ फूड का इश्यूज आ जाता है, डाइजेस्टिव के साथ उनकी जो हाइजीनिक कंडीशन का इश्यूज आ जाता है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं कि अगर इनके साथ मदर फीड है तो उसमें जो है हाइजीनिक इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर इन केस वो जो है कमर्शियल फीड के ऊपर जो है उनको मिल्क दिया जाता है चीज़ें, तो उसमें वो इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इन केस जिस तरह एनिमल्स के केस में ये होता है कि अगर इन केस मदर फीड भी नहीं है और उनको जो है हम मार्केट अवेलेबल फीड दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारा इश्यूज होते हैं। जिस तरह मार्केट में हम नॉर्मली जो है उसको मिल्क देते हैं, और मिल्क का इश्यूज जो है अगर वो मदर मिल्क नहीं है, वो केटल मिल्क है, तो उसमें लैक्टोज कंटेंट्स बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि आपने जब भी क्वेश्चंस करनी होती है, चीजें जो है करनी होती हैं, तो आपने मोस्टली जो है सिस्टमिकली जो है उसमें जाना है। जिस तरह अगर कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में आप लोगों ने ये देखना होता है कि आया इन केस उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनको सांस निकालने में प्रॉब्लम है, अगर उनको कफ है तो प्रोडक्टिव कफ है जिसमें स्पूटम आ जाते हैं। अब एनिमल में और बच्चे नॉर्मली जो है वो थूकते तो नहीं है स्पूटम वगैरह, उस कंडीशंस के अंदर ये देखना होता है कि वो जो है अगर कफ कर लेते हैं और उसके बाद उसको स्वाल्विंग रिफ्लेक्स है, तो इट्स मीन उसको प्रोडक्टिव कफ है। और अगर इनकेस ड्राई कफ है तो ड्राई कफ में आवाज आपको जो है हॉर्श कफ आ जाते हैं। तो जब भी आप लोग डॉक्टर्स को बताते हैं, चाहे एनिमल्स के रिलेटेड हो चाहे जो है वो पीट्स के लिए रहती हो, तो आप लोगों ने ये जो है आपने उनको बताना है कि इनको अगर कफ है तो कफ का नेचर किस तरह है, ड्राई कफ है, तो ये उनके लिए इजी होता है और वो इजीली जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस के अंदर जो है मोस्टली डॉक्टर जो है एग्जामिन कर लेते हैं, इंक्लूड व्हाट ही विल टेक टेम्परेचर, पल्स, respiration, capillary refill time. In physical examination, in which the physician try to find any sign of the potential disease of any other illness. For these, they normally palpate the child or the animal. Percussion, this is also a technique for examination, auscultation of their chest, auscultation of their heart, inspection through eyes, they examine overall body, and also examine some of the neurological साइंस सिम्टम्स इन चाइल्ड इन एनिमल। इस कंडीशन के अंदर नॉर्मली जो है अगर हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर मोस्टली हमें बताते हैं कोई इन्फेक्शन जो है वगैरह तो नहीं है, पल्स हम देखते हैं जो या हार्ट बीट देख लेते हैं, लंग साउंड जो है वो जो है डॉक्टर उसकी एग्जामिन कर लेते हैं, अगर इनकेस डिहाइड्रेशन स्टेटस है उसके अंदर कैपिलरी रीफिल टाइम देख लेते हैं। अदरवाइज डॉक्टर अक्सर ये एडवाइस कर लेते हैं कि आप लोग जाके जो है कुछ जो है टेस्ट कर ले, जिस तरह सीबीसी कर लेते हो, इन्फेक्शन के बारे में बता देते हैं, लिफ्ट टी करवा देते हैं जो लीवर के बारे में नॉर्मली बता देते हैं, आरएफटी कर लेते हैं जो रीनल फंक्शन टेस्ट जो किडनी की जो है सिचुएशन बता देते हैं। अदर टेस्ट इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, एंडोस्कोपी एंड यूजुअली जो है डिस्कार्ड। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम एनिमल साइड पे देख लेते हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी कुछ हमारे पास मौजूद भी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ह्यूमन साइड पे फैसिलिटी नॉर्मली मौजूद होते हैं और नॉर्मली जो है परफॉर्म कर लेते हैं। In assessment diagnosis or differential diagnosis, mostly डॉक्टर इसमें जो है देख लेते हैं कि अगर इन केस कोरोना पेशेंट है या इन्फ्लुएंजा पेशेंट है, दोनों में जो है डिफरेंशियल डायग्नोज हम किस तरह कर सकते हैं। तो अगर इनके सब प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री अपनी जो है एनिमल्स को देखते हैं, अपने चाइल्ड्स को देखते हैं, तो उस डॉक्टर को आप बेहतर तरीके से बता देंगे, तो उनके लिए भी इजी होता है कि उसको जो है आइडेंटिफाई कर ले। क्योंकि अगर हम देख लेते हैं कि बड़े होते हैं तो वो अपनी सारी चीजें खुद बता देते हैं, लेकिन जो है चाइल्ड में या एनिमल में जो है ये नॉर्मली जो है मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए कि वो अपने जो है पेशेंट से डायरेक्ट जो है ये एक जो है पूछे, तो वो पेशेंट की जगह जो है वो पूछ लेते हैं अपनी जो है जो उनके ओनर्स होते हैं या उनकी मदर्स होते हैं। For this identification of those regime problem, identification of drug interaction, वो इसी कंडीशन जो है असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें देख लेते हैं। मोस्टली जो है अक्सर ये होता है कि बच्चों को जो है वालिदैन अक्सर ये भूल जाते हैं कि कितने एज का है, कितना इसका वेट है। उसके रीजन ये होता है कि अगर इनके तो प्रॉपर तरीके से ये चीजें नहीं बताएंगे, तो जो डॉक्टर होता है वो सारे एडवाइस ऑन द बेसिस आप जो है उनकी वेट करते हैं, ऑन द बेसिस आप उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं।
जिसके बेस पे उसकी जो है ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और वो बेसिकली होता है, कुछ अक्सर इस तरह भी कंडीशन होते हैं कि बच्चों को जो है स्पेशली जो है फर्स्ट टाइम आ जाती है, जिस तरह न्यूनेटल जॉइंटस है, और उसी के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बॉडी के अंदर उसकी कमी होती है, जिस तरह G6PD एक कंडीशन है उसके अंदर आ जाते हैं। और अगर इनके पेरेंट्स को ये नहीं पता तो नॉर्मली उस कंडीशन के अंदर ये होता है कि डॉक्टर ऐसी चीज एडवाइस कर लेते हैं तो उसका रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उसको स्टार्ट हो जाती है। या अगर इनकेस वो डॉक्टर को ये नहीं बताते कि हमारे जो जेनेटिकली कुछ इश्यूज है, स्पेशली अगर आप लोग देख लेते हैं कि डायबिटिक होते हैं, उसके बच्चों में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर इनकेस वो ये नहीं बताएंगे तो अगला जो है वो कंडीशन ये होता है कि वो अगर बच्चा भी जो है, आजकल ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे पीडियाट्रिक्स में भी डायबिटिक्स आ रहे हैं, और अगर वो कफ सिरप या इस तरह चीजें लिख रहे हैं जो शुगर से जो है स्पेशली हनी एडिशन है, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हिस्ट्री टेकिंग जो है उसमें आप लोगों ने बताने होते हैं ताकि डॉक्टर जो है ड्रग सेफली और उसकी एफिकेसी के मुताबिक जो है कर ले। इन प्लानिंग इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट प्लान होता है कि हम मैंने क्या क्या चीजें करनी होती हैं। और क्लाइंट एजुकेशन इज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डॉक्टर, कि उसको एजुकेट कर ले कि किस तरीके से देना है। अगर डॉक्टर उसको जो है ये नहीं बताती, चीजें नहीं कहती, तो मोस्टली अक्सर ये होता है कि बच्चों को पूरा सिरप जो है 2 ml जो है 10 ml 5 ml ये पिला लेते हैं, और अक्सर वो ड्रेंच हो जाती है जिसकी वजह से उसको नमूनिया के चांसेस होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से उसको जो है बताना होता है, और ये एज ए जो है मदर आपने भी सीखना होता है कि किस तरह जो है आपने जो है उसको देना है, कितने कतरे देने हैं, किस तरीके से देना है, ताकि वो जो है उसको मसाइल उसके बाद ना हो। फॉलो अप केयर्स के लिए भी जो है डॉक्टर के पास जाना होता है इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ पीडियाट्रिक डिजीज बहुत कॉमन है, जिसमें कॉमन फ्लू आ जाता है, नेजल एलर्जी आ जाती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। स्पेशली आजकल जो लोग यूज कर लेते हैं ये जो डायपर्स वगैरह वो प्रॉपर चेंज नहीं करते, वो उसमें जो है प्रॉपर एंटीसेप्टिक नहीं है, तो वो यूटीआई इन्फेक्शन उसमें बहुत कॉमन है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये बहुत कॉमन कंडीशन है बच्चों के अंदर। अगर मदर प्रॉपर उसको फीड नहीं करवाती, प्रॉपर पोजीशन पे फीड नहीं करवाती, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है अक्सर इसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा जो है पेनफुल कंडीशन है। चिकन पॉक्स जो है ये कंडीशन है, लेकिन नॉर्मली जो है वैक्सीनेशन होते हैं, लेकिन अगर इनके ह्यूमन में हम प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो नहीं करते और हम प्रॉपर गाइडलाइन हमारे पास नहीं होते, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। फिफ्थ एडिशन जो है डिजीज है हैंड फुट माउथ डिजीज, एम्पिटीगो, मेनिंजाइटिस भी बहुत कॉमन केसेस आ जाते हैं। डायरियल डिजीज है, इसमें डिहाइड्रेशन स्टेटस आ जाते हैं, स्पेशली जो है बच्चों में पेडिकुलोसिस आ जाते हैं, पर्ट्यूसियोसिस आ जाते हैं। पिंक आई डिजीज, रिंग वर्म एंड स्केबिस जो है बहुत कॉमन है इसमें। बेसिकली हम वेटरनेरियन, लेकिन इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो एनिमल्स के साथ रिलेटेड भी होते हैं, या एनिमल जो है वो नॉर्मली हम उसमें भी देखते हैं। तो उसमें ये है कि अगर इनका कॉमन फ्लू जो है या कॉमन कोल्ड होते हैं, इसमें नॉर्मली रननी नोज है उसकी, ये जो है मेन सिम्टम नेजल डिस्चार्ज। अक्सर ये होता है कि कुछ में रनी नोज है, अगर क्लियर डिस्चार्ज है तो इट्स मीन कि आपको जो है डॉक्टर को ये बताना होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके मुताबिक जो है प्रिस्क्रिप्शन करनी होती है। इन केस उसमें जो है म्यूकस और उसमें परोलेंट डिस्चार्ज है, उस कंडीशंस के अंदर आपने डॉक्टर को ये भी बताना होता है, क्योंकि ये कुछ और आपको बता देते हैं। इन केस उसमें ब्लड आ रहा है तो ये कुछ और चीजें होती है। स्नीजिंग जो है आप लोगों ने बतानी होती है, क्योंकि मोस्टली जो है कॉमन कोल्ड जो है वो एलर्जीज की वजह से हो जाते हैं, स्पेशली परफ्यूम की वजह से, स्पेशली जो है डस्ट की वजह से, कारपेट डस्ट की वजह से बहुत कॉमन है। या फ्लू जो है घर में अक्सर ये होता है कि कुछ इस तरह जो है फीड की वजह से भी जो है उसके स्मेल की वजह से भी बच्चों में जो है ये चीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जो इरिटेशन होते हैं, और इरिटेशन की वजह से उसको मोस्टली जो स्नीजिंग होते हैं। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। जो है कुछ बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है रेनाइटिस, और उसके अंदर जो है नाक के अंदर अगर इनकेस उसमें जो है फ्लू हो जाते हैं, उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहां पर जो डिस्चार्ज है वो एक बैरियर होता है उसको सांस लेने में, और उसकी वजह से जो है उसको तकलीफ होती है। तो डॉक्टर को अक्सर ये कहते हैं कि बार बार रोता है, इस तरह चीजें हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर को ये नहीं बताएगा कि इनको फ्लू है या इसका नाक बंद है, तो डॉक्टर अक्सर जो है वो मिस गाइड हो जाते हैं। वो अक्सर जो है उसकी एब्डोमेन की तरफ देखते हैं, उसकी यूटीआई उसके देखते हैं। तो ये भी एक मेन है कि जब जो है बच्चों को जो है ये चीजें हैं, तो उसको जो है फ्लू है या उसकी जो है नाक बंद है, तो उसको जो है स्लीपिंग डिफिकल्टी आ जाती है। लो ग्रेड फीवर, कुछ कंडीशन के अंदर ये होता है कि उसके अंदर जो है नॉर्मल से स्लाइटली 1 to 2 Fahrenheit टेम्परेचर जो है उसमें हो जाते हैं। और नेजल एलर्जी जो मैंने पहले जो उसमें बता दिया, जिसमें कफ भी उसमें कुछ कंडीशन के अंदर क्रॉनिक होता है, इचिंग नोज होते हैं,
रनिंग नोज, स्नीजिंग, रेडनेस जो है उसमें आ जाती है, डिफरेंट वॉइसेस थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाती है, विजलिंग। और मोस्टली अक्सर ये होता है कि बच्चों में जब विजलिंग साउंड आ जाती है तो लोग अक्सर ये कह देते हैं कि जो है इसको जो है नमोनिया है और उसकी जो है लंग्स से साउंड एबनॉर्मल साउंड आ रहा है। तो नॉर्मली नोज की जो स्पेस कम हो जाती है तो उसकी वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ स्टार्ट हो जाता है, कुछ कंडीशन के अंदर एडीमा भी स्टार्ट हो जाता है, लेक्रिमेशन भी बहुत होते हैं, जो है आइज डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं कि एलर्जी की वजह से उसको वॉमिटिंग होती है, एंड आल्सो जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जिस तरह मैंने पहले आपको थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि कुछ फीड ऐसे होते हैं कि अगर हम बच्चों को दे देते हैं उसकी वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। मदर फीड सबसे बेहतरीन है क्योंकि नॉर्मल ये होता है कि उसमें इतनी मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर इनके साथ जो है कमर्शियल फीड यूज कर लेते हैं तो उसके लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें आप लोगों ने जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें अपने बच्चों को जो फीड देना होता है, और अगर इन केस वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, प्रॉपर चीजें नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्लम अक्सर ये होता है इन्फेक्शन। तो अगर आप लोग डॉक्टर को ये नहीं बताएंगे नॉर्मली कि मैं जो है मदर पेट के ऊपर है या ये इस तरह कंडीशन है कि ये जो है दूसरी चीजों में जो है यूज कर लेते हैं, तो डॉक्टर अक्सर उसमें मिसगाइड होते हैं, वो दूसरी चीजों पे चले जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली नोट करने होते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये भी जो है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें भी जो है सेम साइंटम्स होते हैं जो नॉर्मली जो है एलर्जीज और नॉर्मली जो है नेजल प्रॉब्लम में हो जाती है, जिसमें लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है कि बच्चों को जो है सर्दी चिलिंग महसूस हो जाती है, सोर थ्रोट एंड स्टफी नोज होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड मोर टाइट देन यूजुअल। एस्थमा जो है नॉर्मल ये होता है कि ये एस्थमा जो है इसमें ये मोस्टली इनहेरिटेड फैक्टर है, लेकिन कुछ एलर्जिक की वजह से भी हो जाते हैं, जिसमें नॉस्टिव फ्लेयरिंग एंड एग्जर्जेटिव बेली मूवमेंट। आप लोग देख लेते हो जोर लगाते हैं सांस निकालने के टाइम, और एस्थमा पेशेंट हम डायग्नोज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेटरी डिस्पनिया। क्रॉनिक कफ होता है, उसके अंदर रैपिड ब्रीथिंग, सीज मूवमेंट इन चेस्ट, बार बार जो है वो मूवमेंट। तो अक्सर मदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे बच्चों को क्या स्टार्ट हुआ है, किस तरह है। तो ये नॉर्मली इस्मा की साइन है। तो ये टाइटन नेक एंड चेस्ट मसल, विजलिंग साउंड विल इन एंड आउट, नॉर्मली होता है कि स्पेशली जब सांस निकाल लेते हैं उस टाइम ये साइन सिम्टम आ जाते हैं। नमूनिया केस है, आजकल बहुत केसेस आते हैं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर कवर नहीं करते प्रॉपर तरीके से, उस कंडीशन के अंदर उसको जो है नमूनिया, ये जो बेसिकली लंग्स के अंदर अल्विलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं पेडियाट्रिक, जिसमें उसको जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटिंग कंडीशन है, और बहुत सारे जो है इसमें जो है ज़्यादातर चांसेस होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि अगर सांस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसमें शेकिंग फील्स होंगे, स्टफी नोज, ग्रंटिंग साउंड आ जाते हैं, एक्सट्रीमली केसेस। और आजकल बच्चों को अगर प्रॉपर केयर नहीं करते, प्रॉपर चीज़ें नहीं करते, लोग अक्सर जो है बाइक पे लेके जाते हैं, उसका नोज प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करते, उसके माउथ को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं करते, या अक्सर कंडीशन के अंदर लोग ये भी कर लेते हैं कि घर के अंदर जो है स्पेशली जो है रूम के अंदर जो है हीटर चला लेते हैं, जिसके अंदर वहां से भी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और लोग बच्चे जो है डायरेक्ट जो है एक्सपोज कर लेते हैं कोल्ड जो है इन्वायरमेंट को, या बच्चे ऐसे बाहर जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी उसको ये मसला स्टार्ट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा होते हैं, और उस कंडीशन के अंदर जो है नॉर्मली अगर आप लोग देख लेते हैं कि लोअर बेली पेन होते हैं, स्ट्रेंजी स्मेल इन यूरिन। तो अगर मदर नॉर्मली उसकी यूरिन का जो है वो देख लेते हैं, उसकी जो डायपर चेंज कर लेते हैं, उसको आइडिया हो जाता है कि नॉर्मली जो है इसका स्मेल इस तरह आता है, इस कंडीशन में इसका स्मेल बहुत बैड स्मेल आ रहा है। और बच्चा जो है जब भी यूरिन पास कर लेते हैं, पेन और बर्निंग मिक्सचुरेशन, उसको जब भी यूरिन पास कर लेते हैं तो बच्चा बहुत रोना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये भी जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर होता है। रिक पे जो है पिंक फॉल स्मेलिंग यूरिन होते हैं इसके अंदर, कुछ के अंदर जो है ब्लड भी आ जाता है अगर यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, कुछ कंडीशन के अंदर ये भी होता है, कुछ के अंदर पस भी आ जाता है। और अगर इनकेस आप लोग जो है लोअर एरिया एब्डोमेन, जो ये एरिया है, अगर आप लोग जहाँ से ये डायपर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं इस एरिया में अगर वो एग्जामिन कर लेते, यहाँ पर पेन महसूस होना जो है उसको स्टार्ट हो जाता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मैंने आपको पहले कहा बहुत कॉमन कंडीशन है, और बहुत बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है, और ये आ जाते हैं कि अगर प्रॉपर पोजीशन में बच्चे को जो है उसको प्रॉपर फीड ना करे मदर, उसको लिटा के जो है इस तरह कंडीशन कर ले कि उसकी पोजीशन हेड पोजीशन नीचे की तरफ हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये जो है पहले उसको जो है थ्रोट इन्फेक्शन, और थ्रोट इन्फेक्शन के बाद इसको जो है ईयर इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उनको नॉर्मली वन साइड ऑफ द आईज जो है वहां से जो है लेक्रिमेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर वन साइड ऑफ द ईयर उसमें इन्फेक्शन है, बच्चा बहुत ज्यादा इसमें जो है रोता है, और इस एरिया में स्वेलिंग बार बार जो है वो अपने जो है स्पेशली हेड रीजन जहाँ पर ईयर है उसको जो है अपने हाथ के साथ जो है बार बार उसको
हेड भी कर लेते हैं। तो अगर इनके मतलब इन चीज़ों को एग्जामिन कर लेते हैं तो आइडिया हो जाता है। अदरवाइज अक्सर ये होता है कि 4 मरतबा 5 मरतबा इनको डॉक्टर के पास जाना होता है और प्रॉब्लम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं करती। अक्सर ये होता है कि बच्चे को जो है प्रॉब्लम इन लेइंग डाउन, अगर आप लेइंग डाउन जो है या उसको चीविंग स्टार्ट कर लेते हैं या अगर वो सकलिंग मदर जो है फीड लेती है तो इसको पेन महसूस होते हैं। तो ये भी एक उसकी कार्डिनल साइन है कि आपको पता लग जाता है कि, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि इसको ये जो है थ्रोट इन्फेक्शन है। तो ये चीजें भी देखें। डीजिंग, पस फील्ड, अगर इनकेस उससे पस आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो आपको आइडिया हो जाता है कि इन्फेक्शन है या इरिटेशन जो है वहां से होता है। चिकन पॉक्स ये एक डिजीज है नॉर्मल, जो इसमें ये डिफरेंट साइन सिम्टम्स आ जाते हैं जो नॉर्मली आप लोग देख लेते हैं। तो ये और बाद में जो है वायरल डिजीज है और ब्लस्टर्स आ जाते हैं और उसमें जो है फिश के फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिफ्थ डिजीज ह्यूमन पारो वायरस, जिस तरह ह्यूमन एनिमल्स में जो है पारो वायरस बहुत कॉमन डिजीज है, स्पेशली डॉग्स के अंदर भी आ जाते हैं, फिलाइडी फैमिली के अंदर भी आ जाते हैं। इस तरह जो है ये एनिमल्स के, ये ह्यूमंस के अंदर भी है। और उसमें ये है कि उसमें जो है आपको जो है स्किन इन्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा जो है कॉमन और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है आपको इसमें नजर आ जाता है। हैंड फूट माउथ डिजीज जो है ये हमारे पास जो है एनिमल में भी एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं हैंड फूट माउथ डिजीज, जो एप्टोवायरस क्रॉस कर लेते हैं। इस तरह जो है ह्यूमन में भी हैंड फूट एंड माउथ डिजीज है जो सडन ऑनसेट होता है, फीवर, सोर थ्रोट, स्मॉल ग्रेशियस ब्लिस्टर इन माउथ, और जो है वही साइन सिम्टम जो नॉर्मली जो है एनिमल्स में मौजूद होते हैं कि माउथ के अंदर है तो एनिमल जो है बच्चों को भी जो है फीडिंग करना मुश्किल हो जाती है, ये चीजें जो मौजूद होते हैं। हर्पिस वायरस वेरी जो है इंपॉर्टेंट और नॉर्मल इसकी वैक्सीन वगैरह भी करवाई जाती है। तो सुपरफिशियली क्लियर विजिकल आप उसको में नजर आ जाते हैं। तो और रूटीन इसकी वैक्सीनेशन होते हैं। पिछले साल इसकी भी आउटब्रेक हुआ था, अभी जो एडल्ट के अंदर भी इसकी आउटब्रेक हुआ है। एमपीटीगो नॉर्मली होता है कि बैक्टीरियल जो है उसकी वजह से आ जाते हैं और वहाँ पर म्यूकस वगैरह फॉर्मेशन जो है ये चीजें आ जाती है। मीजल जो है इसकी नॉर्मली वैक्सीनेशन होते हैं जिसमें भी यही साइन सिम्टम है। और रुबेला और मीजल वायरस का पिछली जो है नवंबर में भी जो है इसका ही आउटब्रेक आया था जिसमें जो है बच्चों के ऊपर ये है। तो इसकी अगर प्रॉपर जो है बच्चों का पता लग जाते हैं और उसको प्रॉपर आइसोलेट करते हैं, उसकी वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस उसकी कम होते हैं डिजीज के। मेनिंजाइटिस जो है एज सच इतना कॉमन कंडीशन नहीं है लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी वजह से आ जाती है, जिसमें सडन ऑनसेट विद फीवर, इंटेंस हेडिंग होती है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टिफ नेक एंड पिन पॉइंट रैशेज। सोर थ्रोट हमने पहले भी थोड़ा जो है स्केलेट फीवर हमने पहले भी जो है डायग्नोस किया है। इसमें भी जो है और साइन सिम्टम इस तरह है कि स्प्रेड ब्रीथिंग, बहुत बेड स्मेल आता है, उसके माउथ से स्मेल आ जाता है। अगर मदर उसको प्रॉपर जो है उसको जो है इन केस वो स्मेल कर लेते हैं, नॉर्मली डॉक्टर इसको एग्जामिन कर लेते हैं लेकिन फिर भी अगर मदर को जो है ये चीजें जो है पहले नोट कर लेते हैं उसके लिए ईजी हो जाता है। पर्सनल जो है उसमें कफिंग आती है, स्नीजिंग आते हैं। टच योर माउथ और नोज आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद सिक्रीशन जो है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है ये नॉर्मली वायरस की जो है उसमें बता देती है, बैक्टीरिया की। और इसमें जो है मेनली साइन सिम्टम वही होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था और उसमें जो फियर बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मली आ जाते हैं। जीआरडीएसिस जो है ये बहुत कॉमन कंडीशंस होते हैं जो ह्यूमन में भी आ जाते हैं और एनिमल्स के अंदर भी बहुत है। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं और डायरिया होता है। स्पेशली अभी भी जो है प्रीवियस वीक इन आवर क्लिनिक केट हैविंग प्रेजेंटिंग, और उसमें वो कह रहे कि 2 मंथ से जो है उसमें प्रॉब्लम था। तो इस तरह केसेस आ जाते हैं कि उसमें जो है इस तरह प्रॉब्लम हो तो ट्राइक्यूरस प्रॉब्लम था, तो जीआरडीएसिस का प्रॉब्लम आ जाते हैं और उसके सिस्ट आते हैं। और स्पेशली बच्चे जो है हाइजीनिक कंडीशन को इतना नहीं देखते, वो जमीन के साथ हाथ लगा लेते हैं और वो अगर हाइजीनिक नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो है डायरिया इस तरह कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर जो है फिर उसको देख लेते हैं, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसमें कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो हम नॉर्मली जो है देख लेते हैं, जिसमें जनरल बॉडी रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स है, पाल्मन रिफ्लेक्स है, प्लेंटर रिफ्लेक्स, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स, बेमिंसी रिफ्लेक्स, बेमिंकिन रिफ्लेक्स। जो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिया है कि किस तरह जो हम बच्चों की जो है नॉर्मल रिफ्लेक्स से कर सकते हैं, जिसमें आप लोग देख लेते हैं द प्लेंटर रिफ्लेक्स, द बेमिंसिन रिफ्लेक्स, इसको आप लोग देख लेते हैं। टॉनिक निक रिफ्लेक्स, आप उसकी जो है निक को एक साइड या दूसरी साइड पे देख लेते हैं, कोई जो है उसका कोई प्रॉब्लम चाहिए। ग्रेस रिफ्लेक्स, बच्चों को आप लोग हाथ दे देते हैं, वो हाथ को पकड़ लेते हैं, ये नॉर्मल जो है उसकी बिहेवियर के अंदर आ जाते हैं। स्टिप रिफ्लेक्स, अगर आप लोग देख लेते हैं कि स्टिप रिफ्लेक्स के अंदर वो चेस्ट के अंदर जो है उसको ग्रेस करके पकड़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। क्रैविंग रिफ्लेक्स, उसको देख लेते हैं। द मोरो रिफ्लेक्स में ये होता है कि बच्चे को आप इस पोजीशन में पकड़ लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि एन जो है वो रोता या इसको कोई पेन वगैरह, तो ये भी आपको जो है डिफरेंट चीजों के बारे में बता देते हैं।
और रिकेट्स जो नॉर्मली होते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर जो है अगर इन केस वो विटामिन डी या वो सन को एक्सपोज नहीं है तो उसकी बोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते, बोन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें जो है डिले ग्रोथ होता है, डिले मोटर स्किल्स होते हैं, पेन इन द स्पाइन, pelvic and legs, muscle weakness because rickets often the area of growing tissue at the end of child bones. It can cause skeletal deformities such as bowed legs or knock knees, thickened wrist and ankles, and breastbone projection. ये हमने बेसिकली जितनी भी जो है जो नॉर्मली कंडीशंस होते हैं, नॉर्मली डिजीज होते हैं जो चाइल्ड्स के अंदर आ जाते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। इस तरह जो कॉमन डिजीज कंडीशन इन एनिमल्स, किचन के अंदर कैट फ्लू जिस तरह हमने ह्यूमन के अंदर बता दिया, कैट स्विंग जिस तरह हमने BRDS में बता दिया, फिलाइन फारो जिस तरह उसमें फिफ्थ डिजीज है, इसमें भी जो है फारो वायरस है, फिलाइन पेन ल्यूकोपीनिया है। फिलाइन ल्यूकीमिया वायरस बहुत कॉमन जो है वो है, ये वायरल डिजीज है और उसमें ये चीजें आ जाती है। फिलाइन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस जिस तरह ह्यूमन के अंदर जो एड्स है, इस तरह जो है फिलाइन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। फिलाइन किल्सी वायरस बहुत कॉमन है, ह्यूमन में भी किल्सी वायरस बहुत कॉमन है। क्लेमिडियोसिस जो है ये भी एक कंडीशन है जो आ जाती है। पपीज जो है वो हमारे पास जो है इसमें आ जाती है। डॉग्स के अंदर फिलाइन फारो वायरस बहुत कॉमन है, ये अगेन जो है ये कैट्स के अंदर भी फिलाइन पेन ल्यूकोपीनिया यहाँ पर भी आ जाते हैं। फिलाइन डिस्टेम्बर बहुत ज्यादा जो है कॉमन कंडीशन है, जिस तरह ह्यूमन में मीजल आ जाते हैं, सेम वायरस है लेकिन जो है उसमें जो है चेंज है, उसकी जो है इम्यूनोजेनिसिटी उसकी चेंज है। हम नॉर्मल जो है वो उसके अंदर जो है जूनोटिक इन नेचर नहीं है, जो ह्यूमन में एनिमल में या एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता। इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस एडिनो वायरस की वजह से होता है, जिसमें जो आप लोग देख लेते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस ह्यूमन ट्रांसफर डिजीज है, एंड कैनल कफ भी जो है उसके अंदर आ जाती है। न्यूनेटल फोल डिजीज जो है ये डिफरेंट जो है फोल्स के अंदर आ जाती है, जिसमें न्यूनेटल आइसो इरिथ्रोलाइसिस जो ह्यूमन के अंदर भी जो न्यूनेटल जॉइंटिस होता है ये भी इसमें कॉमन है। सेप्सिस कंडीशन नॉर्मली एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा है, इसमें न्यूनेटल इंसिपेलोपैथी जिस तरह हमने एनिमल उसके अंदर जो है इंसिलाइटिस डिस्कस किया। प्रीमेच्योरिटी, कॉमन इक्वाइन डिजीज, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, rhinomyelitis equine, herpes virus, equine encephalomyelitis, sleeping sickness, equine infectious anemia virus, वेस्ट नाइल वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई बहुत कॉमन डिजीज इसके अंदर। टेटनस जो ह्यूमन में भी होता है और एनिमल की स्पेशली जो है इसके अंदर जो है बहुत कॉमन है हॉर्सेस के अंदर। न्यूनेटल प्रॉब्लम ऑफ कॉज इस इंक्लूड डायरियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसमें सल्मोनेलोसिस, इकोलाई जो है वो काज कर लेते हैं, कोलिडिस्लोसिस, क्रेप्टोस्पोरिडियम, रोटा एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, स्पेशली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में। पेन हाइपोमोनिया या हाइपोथर्मिया आजकल बहुत केसेज आ जाते हैं। नेवल इन इन्फेक्शन, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन में तो हम नेवल कार्ड को प्रॉपर जो है एंटीसेप्टिक लगा के, एनिमल में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है और वहां से बहुत सारी बैक्टीरिया गेनिंग करके पूरी बॉडी के अंदर ये कर लेती है। मैनेजमेंटल इश्यूज। थैंक यू। एनीवन जिनका कोई क्वेश्चन वो चैट में भी कर सकते हैं, और जो है वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अंदर। The house is now open for question answer session. If anyone have question, please. Okay, if there are no questions, Dr. Sir, can you hear me? जी सर। क्या कर रहे हो? जी सर। Okay. If there are no, please go ahead, please. सर आपने बताया चाइल्ड में एडीमा हो सकता है, सर एडीमा थोड़ा बता दें वो किस जगह होता है स्पेशली और कैसे होता है सर, थोड़ा बता दें चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड में भी जो एडिमा जो है पाव के अंदर भी हो सकता है, या जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो उस एरिया में भी एडिमा हो सकता है। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। जी, anyone? If there are no further questions, then I would like to thank Dr. Ashraf Khan for delivering a very informative lecture on the subject. I would also like to thank all the participants for sparing time for participating in this seminar. So thank you all. And, okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.
Lord, tapawa. Hello.